And now our lockdown lowdown segment with Bhuvan Bam. Well, joining me now is the king of YouTube, the very, very talented Bhuvan Bam. Bhuvan, thank you so much for joining us, first of all. Thank you for having me. And मैं मिला हूँ आपसे पहले भी बहुत बार कई बार बहुत मजा आया आपसे बात करके. Well, firstly, let's get straight into it. Your T2 Talks, great initiative. What you've done now, you've stepped out of your house, you've gone and met people, like you've met transgenders, you've met workers. Talk to me about this initiative. You're raising funds for them. I think it's been a long time since we're hearing about whatever is happening in this country after lockdown, post-lockdown. The migrants are walking back home. The middle class is suffering. I thought कि मैं कॉमेडी तो करता ही हूँ, कॉमेडी तो करता ही रहता हूँ. तो एक T2 Talks एक ऐसा जरिया है जिसके अंदर मैं सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेता हूँ, बीइंग टीटू मामा बन के. तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस एपिसोड में उन लोगों को लाया जाए जो अनसंग हीरोज हैं हमारी लाइफ के, जो हमारे से कनेक्टेड हैं, एकदम इमीडिएटली कनेक्शन में है हमारे, जो हमारे लिए सर्विस करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं. सब्जी वाले हो गए, अखबार वाले भैया हो गए, हाउस मेड हाउस हेल्प हो गई, वॉचमैन हो गए, गार्ड्स हो गए. तो ये सब लोगों का इंटरव्यू लेने से मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनका इंटरव्यू लेना चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है उससे कई लोग वाकिफ नहीं है. मोस्ट पीपल हैव नो क्लू व्हाट्स हैपनिंग एंड एवरीवन, क्योंकि यू गो ऑन सोशल मीडिया, यू गो ऑन इंस्टाग्राम, you're seeing people posting pictures about how they're missing Starbucks, how they are missing pizzas, and then I realized we don't actually know, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में AC है, मेरे घर में फ्रिज में ठंडा पानी है, मेरे अवन में खाना है, तो पूरी दुनिया बढ़िया चल रही है. मतलब लॉकडाउन मजे में चल रहा है सबका नहीं चल रहा है, सिर्फ हमारा चल रहा है, क्योंकि हम लोग प्रिविलेज्ड लोग हैं. हमें we have something to do, we have food to eat. So I thought that I should go and talk to some people, because they represent 100,000 people more, and I think I wanted to do it desperately. बिल्कुल काबिल तारीफ है your initiative, but tell me first of all, when you stepped out of the house, who all did you meet? किस किस से बात करी, कहाँ पे मिले उनसे, और क्या बात हुई, जो एक ग्राउंड रियलिटी होती है ना, जब आपको देखने को मिली होगी, वो उसके बारे में कुछ बताएं. यार, I met a couple. The lady is a house help. The husband worked as a laborer in the electricity department. Then I met transgenders. I met farmers. I met milkmen, and I met a social worker who's distributing food. तो मेरे को उनसे बात करके I realized कि their stories are horrifying, but they are the reality, and we can't escape that. If we are trying to escape that, then we have failed as a society. And I don't know, I went there, I had a word with them. जो वीडियो में मैंने दिखाया है वो तो केवल 15 मिनट का है, but I had a word with them, each one of them for an hour, and then you realize कि dude, you are living a much better life and you can't really do anything about it. You can't really help them. If you really want to help them, then you need to at least show empathy, क्योंकि that's where you begin. अगर आप अपने से less privileged लोगों को के प्रति empathy नहीं दिखाओगे तो it's not gonna happen. तो लॉकडाउन जब हुआ तब आपको पता था, आपको अंदाजा था कि इतना भयानक हो जाएगा? नहीं, इतना पता नहीं था जो इतना भयंकर होगा. तो टोटल कितने परिवार में कितने लोग हैं? यहाँ तो मान लो 2 बच्चा और हम दोनों. तो दीदी, जो आपकी सोसाइटी है, जहाँ आप काम करते हो, आप कितने घरों में काम करते हो? वहाँ 5 घरों में. 5 घरों में. ऐसे वो लोग फोन भी नहीं करता है, कोई तो मदद फिर भी किया, और कोई तो मान लो फोन भी नहीं रिसीव करता है, फोन देख के तुरंत कर देता है, आप जल्दी से आप लोग कुछ करिए, हम लोग अच्छे से गांव पहुंच जाए, बस इतना. टॉकिंग अबाउट रेजिंग फंड्स, तो अभी तक क्या मदद आप कर चुके हैं, उसके बारे में कुछ बताएं, और कैसे रेज कर रहे हैं फंड्स? So this is the 7th day of the episode, and every day, Rose, I'm talking to Hemkund Foundation. They are the guys who are working day and night, and they are
providing food in slums. They are traveling from one slum to the other. सबको queue up करके they are providing them food, and the people who are walking on road, उनको they are providing meals. And जितना भी फंड जनरेट हुआ है यहाँ से, वो हमने जगह जगह वेरीफाइड जगहों पे डोनेट किया, इंक्लूडिंग हेमकुंड फाउंडेशन. एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी. तो हमारा है ही, मॉनिटरी तो हम कर ही रहे हैं, बट हम ये भी सोच रहे हैं कि क्यों ना मील्स भी प्रोवाइड की जाए, और क्यों ना दूध प्रोवाइड किया जाए, ORS प्रोवाइड किया जाए, बिस्किट प्रोवाइड किया जाए, ब्रेड प्रोवाइड किया जाए, तो जो बेसिक नेसेसिटी होती है. क्योंकि दिल्ली में गर्मी भी बहुत है, तो हमने उस दिन 15,000 आइसक्रीम्स अरेंज करी बच्चों के लिए. तो इट्स हो रहा है धीरे, वन डे एट अ टाइम. वी आर टेकिंग इट वन डे एट अ टाइम, बट आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फॉर इट. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. मेरा काम था वीडियो बना के लोगों तक पहुंचाना. जो भी जितना भी लोगों ने शेयर किया, आई गेस उसकी वजह से हेमकुंड फाउंडेशन को मदद मिल रही है, एंड उनके वॉलंटियर्स डे एंड नाइट दे आर वर्किंग. सो kudos to them and the audience. वेरी गुड. अच्छा, अब क्योंकि टीटू मामा इज द मैन ऑफ द मोमेंट, अब टीटू मामा की एक झलक देखना चाहेंगे. आप पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे लॉकडाउन के बारे में, उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस है, यू नो द लाइटर साइड ऑफ द लॉकडाउन आल्सो, बिकॉज भुवन ऑलवेज मेक्स अस लाफ. तो क्या है, ये जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन तो हो रहा है. 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5वां चल रहा है ये, और कुछ नहीं कर सकते. घर में बैठो. अगर ज्यादा कुछ करना है तो घर में ही बैठो, इतना ही कर सकते हो. बाहर निकलोगे तो अपने साथ साथ बाकियों को भी लेके डूबोगे, और ये तो होना नहीं चाहिए. तो घर में बैठो, हाथ धो, खाना खाओ, पकोड़े खाओ, मस्त रहो. Very good. Acha, I also wanted to ask you, there's been this huge commotion over YouTube versus TikTok. Now people are asking for a boycott of TikTok. लोग बोल रहे हैं भाई चाइनीज ऐप है, वैसे भी ऑफेंसिव है, कंटेंट क्या क्रिएट होता है, बहुत बखेड़ा खड़ा हो गया. Where do you, because you're one of the biggest YouTube influencers, not only in India but in the world. So what do you have to say about this whole YouTube versus TikTok episode? Do you think content on YouTube is much better than TikTok? And what people are saying, they're asking for a boycott, or people are basically deleting TikTok. Where do you stand on this? I think being a YouTuber, I of course agree with the fact that YouTube pe content is much superior to that on TikTok. Thing is कि TikTok पे भी अगर कोई कहता है क्रिंज कंटेंट है, तो YouTube पे भी क्रिंज कंटेंट है. कुछ लोग मेरा कंटेंट क्रिंज बुलाते हैं. तो कॉमेडी सब्जेक्टिव, राइट? लाइक कंटेंट इज सब्जेक्टिव. किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता. बट द वीडियोज विच आई हैव कम अक्रॉस ऑन टिकटॉक, जिसमें बिल्ली को लटका दिया है, और कोई मैंने देखा था कि ग्रैंड मदर को कोई चोक कर रहा है दिखाने के लिए कुछ. तो वो चीजें अगर टिकटॉक के ओनर्स अगर वो चीजें नहीं मॉनिटर कर सकते, तो फिर क्या फायदा, ऐसे प्लेटफॉर्म का क्या फायदा? क्योंकि टिकटॉक मैंने देखा है टिकटॉक उन लोगों के पास है जिनके पास यूट्यूब नहीं है. टिकटॉक की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है. रीच इज अमेजिंग, बट आर दे मॉनिटरिंग इट अकॉर्डिंग टू इट? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अगर वो बिल्ली लटका के, अगर वो बिल्ली लटका हुआ वीडियो अगर टिकटॉक पे है, तो मतलब बहुत कुछ हो सकता है. मतलब देयर इज नो होल्ड्स बार्ड. तो आई थिंक बहुत ज्यादा इश्यूज हैं उसके अंदर. तो आई थिंक दे नीड टू फिक्स दैट. और यूट्यूब पे तो आप कह ही नहीं सकते कुछ. यूट्यूब इज अमेजिंग. तो आप बोल रहे टिकटॉक, यू थिंक टिकटॉक शुड बी मॉनिटर्ड बिकॉज सम ऑफ द कंटेंट इज वेरी वेरी डेंजरस. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. हाँ, इट शुड बी मॉनिटर्ड, बट अभी मैंने परसों देखा कि देयर इज दिस वीडियो गेटिंग वायरल ऑफ अ डांसर. ही इज फ्रॉम अ स्लम, एंड उसका कोई डांसिंग का वीडियो वायरल हुआ है, एंड ही इज डांसिंग फिनोमिनली. या मतलब वो भी तो हमने टिकटॉक पे देखा है ना, वो भी तो हमने टिकटॉक पे देखा है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको जो करना है, आप उसको बैन करना है, आप उसको बैन करो. आप उसको ये करना है, आप उसको वो करो. लेकिन आप ये भी सोचो कि कई लोग हैं जिनको डिस्कवर किया गया है वहां से. और टिकटॉक वालों को मैं बोलना चाहूंगा, जो भी ये टिकटॉक के ओनर्स हैं, इनको बोलना चाहूंगा कि आप अपना कंटेंट मॉनिटर करो. आपके कंटेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत है, और इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है. Okay, finally Bhuvan, and as I said, more power to you. आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा चले आगे भी. लेकिन लास्ट में, बिकॉज अभी बहुत सारे आप देखेंगे कि there's a fresh wave of young talent, young influencers making content every single day, and I'm amazed कि कितना अच्छा लोग लिख रहे हैं, कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं.
what would your message be? क्योंकि एक जर्नी होती है एक इन्फ्लुएंसर की भी, पहले 5,000 फॉलोअर, 10,000, 20,000 करना, you know, 1 लाख पे पहुंचे, फिर मिलियंस की बात होती है बाद में. What would your message be to any young girl or guy or anybody really who wants to be an influencer professionally? I think don't start your journey by calling yourself an influencer. क्योंकि मेरे को 4 साल हो गए हैं और मुझे अभी तक इन्फ्लुएंसर शब्द पसंद नहीं है बिल्कुल. क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मुझे इन्फ्लुएंसर नहीं होना चाहिए. मैं इन्फ्लुएंसर हूँ नहीं, टू बी ऑनेस्ट. मैं खुद सीख रहा हूँ. एवरी डे आई लर्न 1,000 ऑफ थिंग्स. एंड इफ यू आर अ बडिंग क्रिएटर एंड एस्पायरिंग क्रिएटर, सो इट्स बेटर कि आप वो कंटेंट पे फोकस कीजिए, वो चीज बनाएं जिससे आपको खुशी मिलती है. आप डोंट मेक इट लाइक उसको क्या पसंद आएगा. डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड डोंट रन आफ्टर एक्सपेंसिव थिंग्स. एक्सपेंसिव कैमराज एंड एक्सपेंसिव सेटअप, एक्सपेंसिve production won't let you become a good creator. Your good content and the good subject will get you viewers. So I think that's the only thing you need to keep in mind. Nice. Well, Bhuvan, it's always a pleasure to talk to you. And I'll see you soon, hopefully after the lockdown. So take care, stay safe, and I'll see you soon. You too. Thank you, Bhuvan. Thank you. Bye. Thank you. Well, that's all for today. Do send me your feedback at Sushant and Mehta on Twitter. Till next time, thanks for watching and goodbye. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.